Namaste viewers, welcome to DM Astrology. This video will be in both the language, halfly it will be English and partially it will be Hindi. As being topic is Raksha Bandhan. So majorly it is being celebrated in the across India, and the Hindu who are residing in the foreign country, they only follow this system. So that is why I thought that this video should be on the both the language Hindi as well as English. तो चलिए भाई और बहनों, आज हम रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे। इस साल की 2023 की रक्षाबंधन किस दिन, किस तरह से, और बहुत सारी भ्रांति फैली हुई है, कब करे कब ना करे। तो आइए चलिए देखते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व किस दिन किस समय पे मनाया जाए। अब हम सब जानते हैं कि ये श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यह आता है योग। सो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको नॉर्थ में नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं और वेस्ट में नारियली पूर्णिमा कहते हैं। जो नॉर्थ है वहाँ पे ये रक्षाबंधन के त्यौहार पे मनाया जाता है। सो दिस फेस्टिवल इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द पूर्णिमा, श्रावण मास पूर्णिमा. So this year the Purnima falls, or it starts from 30th of August 2023, Wednesday around 11 o'clock. Every place it may be differ in India, because I have calculated as per the Bombay time, it may be 2-5 minutes plus minus. So around 11 o'clock the Purnima start. As the Purnima start, the festival also start. And in the next day, 31st of July, August, it will be remaining till 7 hours and 35 minutes, where the sunrise has been there. But after the sunrise, it hardly stay for 15-20 minutes. That is why it has to be celebrated on 30th August 2023. 30 अगस्त को या सुबह 11 बजे के करीब पूर्णिमा का आरंभ हो रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का, और उस दिन यह मनाया जाता है। अब देखिए साथ साथ में क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन जो हमारे करण होता है, दिन में 2 करण होते हैं। सो जो पहला करण पूर्णिमा को चालू होता है वो विष्टिका होता है, और वही विष्टिकरण जो है दैट इज नेम एज भद्रा. इट इज़ बिगिनिंग ऑफ अ भद्रा, जिसको भद्रा का प्रारंभ समय भी कहते हैं. सो भद्रा भी उसी वक्त चालू हो रही है, और ये हालांकि जैसे मैंने आपको कहा 12 घंटे एक करण का भोग काल होता है, तो रात को 9 बजे ये ख़त्म हो जा रही है. सो 9:05 तक भद्रा रहेगी. अब कहते हैं कि भद्रा में कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, विष्टिकरण में कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए. पर इस बार की जो भद्रा है, ये जो 30 अगस्त बुधवार को पूर्णिमा के दिन जो भद्रा, जो वृश्चिक का प्रवेश हो रहा है, उसका नाम है वृश्चिकी. ये जो वृश्चिकी भद्रा है, इसके कहा गया है कि अंतिम 3 घड़ी जो होती है वो ही सिर्फ क्या कहते हैं कि विषकारक होती है, तो उसी को छोड़ना है. सो ऑन दिस 30th of August Wednesday there will be a Purnima. With the Purnima, as per the Panchang, the same day as a Tithi Purnima will be there. The half part of Tithi is called Karana. So Karan is going to start as a Vishtikaran, and as a Vishtikaran start, it is called Bhadra. And Bhadra is not considered good in the Muhurt. It is a killing instinct. It is a very bad time. So this time, that is why people have a somewhat misconcept that due to the Bhadra start, one should not celebrate this Raksha or Rakhi Bandhan till 9 o'clock, because the Bhadra start by 11 hours till night 9 hours and 5 minutes. That is 21 hours and 5 minutes. So people normally believe that this Bhadra is bad. Yes, in the Muhurt also it is said Bhadra is bad. But every Bhadra has its own bad phase. So this Bhadra, this time the Bhadra which is going to fall on the Purnima is called Vrishchiki.
So due to the Vrishchiki Bhadra, it is Shastra says that it has to be only last 3 gati. Last 3 gati has to be avoided. Now 1 gati is equal to 24 minutes. So 3 gati is equal to 72 minutes. So it is 1 hour and 12 minutes. It is to be avoided. So prior to that 1 hour 12 minutes, that means you can tie the Rakhi between 11 hours till your time of 7 hours and 50 minutes. Because at 9 hours night, 9 hours 5 minutes, this Vishti is ending, the Bhadra is ending. So prior to that 72 minutes, that falls 7 hours and 50 minutes in the evening. So between 11 hours to 7 hours and 50 minutes in evening, you can wear. Only you have to avoid after sunset, because this festival has not to be celebrated after the sunset, because there is a bonding of brother and sister. अब देखिए ये जो भद्रा का वृश्चिकी भद्रा है जिसकी हमने बात की कि इस वक्त इस समय जो पूर्णिमा को विष्टिकरण चालू हो रहा है, भद्रा का प्रारंभ हो रहा है, ये भद्रा का नाम है वृश्चिकी, जिसके अंतिम 3 घड़ी का मतलब होता है 72 मिनट, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, मतलब 72 मिनट आपको छोड़ने। अब वो जब अंत के है, वो मतलब कि 9:05 को ख़त्म हो रही है, तो आप समझ लीजिए 7:50 तक आप कोई भी कार्य कर सकते, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो आप राखी का त्यौहार सुबह 11 बजे से लेके 7:50 तक मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तक यह भद्रा जहरीली नहीं है। वैसे भी हम वृश्चिक राशि के लिए भी कहते हैं कि बिच्छी के जो डंक होता है वो उसके पूंछ में जहर होता है। सो वही पूंछ का जो पार्ट है वो 3 घटी का है, जो 72 मिनट 72 मिनट आपको छोड़ना है। पर वैसे भी कोई भी त्यौहार सूर्यास्त के बाद नहीं मनाने चाहिए, तो सूर्यास्त उस दिन 6:54 को हो जाता है। तो आप समझ लीजिए 11 बजे से लेके शाम को 6:54 तक आप राखी का त्यौहार मना सकते। अब देखिए इसमें भी कुछ बहुत अच्छे समय होते, कुछ ज़्यादा अच्छे समय नहीं होते। सो विल डिस्कस। अब हम देखते हैं कि जैसे 11 बजे से आपका समय तो चालू हो जा रहा है, पूर्णिमा लग जाएगी उस दिन, बुधवार है। सो बुधवार के दिन जो राहु काल होता है वो दोपहर को होता है। सो 12:39 12:39 से लेके 14:13 मतलब कि 2:13, मतलब मोटा मोटी मान लीजिए कि 12:40 से लेके 2:15 तक राहु काल है। इसके दरम्यान भी राखी का उत्सव या तो राखी का बांधने का मुहूर्त नहीं होगा। देखिए जब आप ये त्यौहार मनाते तो आप भाई बहन की रक्षा का जिम्मेदारी लेता है। सो अगर राहु काल में होगा तो वो अपने ऊपर ही आई हुई विपत्ति को नहीं संभाल पाएगा, तो कैसे अपनी बहन पे आई विपत्ति को वो सामना कर पाएगा। इसीलिए राहु काल जो कि 12:39 से लेके 2:13 तक है, तब तक आपको इसका त्याग करना है। तो उस दौरान भी ज़्यादातर लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त है कर लीजिए, अभिजीत मुहूर्त है कर लीजिए, गोरज मुहूर्त है कर लीजिए, पर कोई क्षण पे जब राहु काल होता है तो नहीं कर सकते। तो इस बार अभिजीत मुहूर्त और आपका राहु काल दोनों एक दूसरे से कट्टर कर रहे। अब देखिए अभिजीत मुहूर्त में ही आपको पहनना है, तो आप 12:15 से लेके 12:40 39 तक आप पहन सकते। सो अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तो राखी बांधने का भी यदि श्रेष्ठ मुहूर्त है तो वो है आपका 12:14 से लेके 12:39। यह 25 मिनट का जो आपको समय मिलेगा वो सबसे श्रेष्ठ है, अभिजीत मुहूर्त है। नहीं तो आप अच्छे चौगड़िए में कर सकते। अब अच्छा चौगड़िया, शुभ चौगड़िया आपको 11:05 से लग के 12:39 तक रहेगा, जो आपका शुभ चौगड़िया भी होगा, अभिजीत मुहूर्त भी होगा। और वैसे भी 12:39 से लेके 2:13 तक आपको त्याग ही करना है, नहीं पहनना है, ठीक है ना। सो इसके बाद आपको लाभ मिलता है शाम के समय 5:20 से लेके 6:54। सो यह 3 मुहूर्त मैंने आपको बताए। एक है आपका 12:14 से लेके 12:39, ये सबसे श्रेष्ठ है, यह आपका अभिजीत मुहूर्त है। अगर
उसके पहले करना है तो 11:05 से लेके 12:39 के बीच में शुभ चौघड़िया है, तभी भी कर सकते हैं। या फिर लाभ चौघड़िया आपको शाम के वक्त मिलता है 5:20 से लेके 6:54, जिसमें आपका गोधूलिक काल भी आ जाएगा। तो यह 3 मुहूर्त को आपको लेना है और इस 3 मुहूर्त में आप राखी बंधाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसमें राखी का बंधन होता है, एक दूसरे को आशीर्वाद शुभाशीष प्राप्त होता है। तो अगर अच्छे समय में इसका पालन किया गया तो ये जो संबंध है, आज देखिए आज कोई किसी के रिलेशन को, संबंध को ज़्यादा लंबा नहीं चलाता है। तो जो संबंध को लंबा चलाना चाहते, जो वास्तव में ही अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है, तो उसके लिए यह मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यही चीज़ों को हम अंग्रेजी में भी जान लेते। सो टू गेट द ऑस्पिशियस टाइम टू टाई द रक्षाबंधन, जो that's a festival of safety, we call safety, where the brother pledge to take the safety of his sister. So that pledge what the brother take, or oath which brother take to take care of his sister, so auspicious time has to be followed. As I told you that 11 hours morning till your evening 7 hour 50 minutes evening is good time, but one should avoid after sunset. The sunset is 18 hours and 55 minutes, so 18 hours 55 to 7:50 you should avoid. Now I'll give you 3 muhurt. See, as it is on the Wednesday, 30th of August, it falls a Wednesday. So Wednesday Rahu Kal will be there between 12 hour 39 minute to 2 hours and 13 minutes in the afternoon. This is a period one should avoid. That is a Rahu Kal. So Rahu Kal, nobody do any auspicious work. Because for what purpose you are doing, that purpose will not be fulfilled. That is why it is to be completely avoided to tie the Rakhi between 12 hours and 39 minutes to 2 hours and 13 minutes in the afternoon. Yes. The best muhurt it is called as a Abhijit muhurt. You may take some portion of the Abhijit muhurt. So between 12 hours and 14 minutes to 12 hours of 39 minutes, that 25 minutes you will get Abhijit muhurt. And Abhijit muhurt means a victory muhurt, auspicious muhurt, very solid muhurt. See, Brahma muhurt, Abhijit muhurt and Godalik muhurt. These 3 muhurt are very auspicious, very powerful, out of which we are going to utilize 2. Abhijit muhurt, I already told you that 12 hour 39 minute to 12 hours 14 minute to 12 hour 39 minute will be the Abhijit muhurt. The second big period will be the Chogadiya. So Chogadiya, Shubh Chogadiya will be there between 11 hour 5 minute to 12 hour 39 minute. So that will comprise Abhijit muhurt some portion also, and entire 11 hour 5 minute to 12 hour 39 minute will be the Shubh Chogadiya. That is also one of the auspicious time. And another will be the Labh Chogadiya, which falls 5 hours 20 minute in the evening till 6 hour and 54 minutes, which also comprise the Gaudulik Kal. That is a third best muhurt of the day. So one first best muhurt will be Abhijit, that muhurt that will be between 12 hours 14 minutes to 12 hour 39 minutes, that 25 minutes. The second best muhurt is the Shubh Chogadiya between 11 hour 5 minutes to 12 hour 39 minutes, and third auspicious muhurt will be the Labh Chogadiya, also comprised with the Godulik Kal, 17 hours 20 minutes to 18 hours 54 minutes. Those who care for their sister should follow the auspicious time. See, when our sages, when our Rishi Muni has done so much research, they made the Dharma Sindhu, they made the Muhurta as an important. And Muhurta is nothing but to start or begin with the auspicious time. So when you start with the auspicious time, your things will long last for long time. जब आप एक अच्छे मुहूर्त का उपयोग करते, इस्तेमाल करते, तो वो वस्तु, वो चीज़, वो प्रसंग, वो घटना आप लंबे अरसे तक उसका सुख प्राप्त कर सकते। यही मुहूर्त के पीछे का रहस्य है। तो 3 मुहूर्त मैंने आपको बता दिए। अभिजीत मुहूर्त 12:14 से 12:39 तक, शुभ चौगड़िया जो 11:05 से लेके 12:39 है, और लाभ चौगड़िया जो 5:20 को शाम से लेके 6:54 जो आपका गोधूलिक काल भी रहेगा।
तो इस तरह से इन 3 समय में आप कभी भी राखी बांधे और आपके त्यौहार को 4 चांद लगाइए। इसके पीछे का जो उद्देश्य है भाई बहन का प्रेम, ठीक है ना, जो तिलक करते हैं भाई बहन को, बहन भाई को जो तिलक करते हैं वो तिलक, उसके अंदर छिपी हुए आशीर्वाद, रक्षा करने का, क्योंकि जब हम हाथ में कोई चीज़ बांधते, कलावा बांधते हैं, पूजा के समय बांधते हैं, उसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ के लिए बंध गए। सो वही रक्षा, प्रोटेक्शन, और बंधन मतलब काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन। सो दैट काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन यू शुड टेक ऑन द ऑस्पिशियस टाइम। सो इसी चीज़ों को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और इस त्यौहार से ज़्यादा लंबे अरसे का सुख प्राप्त करें, इसी आशा और उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको फैलाएंगे और इसका लाभ उनको भी देंगे। I thank hereby to you to listen this video. Do spread this video to the maximum people so that they also get benefit. So thank you very much viewers for listening this. For more kind of information and consultation, you can contact me in my WhatsApp number given here. You can follow me in my Facebook page और Instagram page धर्मेश मेहता और DMS Soji. तो यह वीडियो हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों चैनल पे मैंने बनाया है। हिंदी चैनल के लिए DMS सोजी हिंदी में यह वीडियो उपलब्ध है और अंग्रेजी के लिए यही वीडियो पूर्ण का पूर्ण वीडियो DMS सोलॉजी की अंग्रेजी चैनल में मौजूद है। सो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर इसका सदुपयोग करें और दूसरों को भी मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, नमस्कार।